اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحج مدنیہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے انسانوں، ڈرو اپنے رب سے، بے شک زلزلہ قیامت کا بڑی ہولناک چیز ہے۔ استغفر اللہ۔ جس دن دیکھو گے تم اس سے، کیفیت یہ ہوگی کہ غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے، اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنا حمل، اور دکھائی دیں گے تم کو لوگ مدہوش، حالانکہ نہیں ہوں گے وہ نشے میں، بلکہ یہ عذاب ہوگا اللہ کا بہت سخت۔ استغفر اللہ۔ یا اللہ بخش دے ہمیں۔ اور بعض انسان ایسے ہیں جو بحثیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور پیروی کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کی، حالانکہ لکھ دیا گیا ہے شیطان کے نصیب میں جو دوست بنائے گا اس کو تو یقیناً گمراہ کر دے گا اسے، اور دکھائے گا اسے راستہ جہنم کے عذاب کا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اے انسانوں، اگر تمہیں ہے شک جی اٹھنے میں مرنے کے بعد، تو واقعہ یہ ہے کہ ہم ہی نے پیدا کی ہے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی، تاکہ ظاہر کریں ہم تم پر اپنی قدرت و حکمت، اور ٹھہراتے ہیں ہم رحموں میں جس کو چاہیں ایک وقت مقرر تک، پھر نکال لاتے ہیں ہم تم کو ایک بچے کی صورت میں، پھر پرورش کرتے ہیں تمہاری تاکہ پہنچو تم اپنی جوانی کو، اور تم میں سے کچھ ایسی ہیں جو مر جاتے ہیں، تم میں سے کچھ ایسی ہیں جنہیں لوٹا دیا جاتا ہے بدترین عمر کی طرف، تاکہ نہ جانے وہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی۔ اور دیکھتے ہو تم زمین کو کہ سوکھی پڑی ہے، پھر جو ہی برساتے ہیں ہم اس پر پانی تو وہ لہلا اٹھتی ہے بے شک، اور پھولنے لگتی ہے اور اگاتی ہے ہر قسم کے خوش منظر و نباتات بے شک۔ یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے بے شک، اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو بے شک، اور یقیناً ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے بے شک بے شک۔ اور یہ کہ قیامت ضرور آئے گی بے شک، نہیں کوئی شک اس کے آنے میں، اور یہ کہ اللہ ضرور اٹھائے گا انہیں جو جا چکے ہیں قبروں میں۔ اور کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو بحث کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، حالانکہ نہ انہیں ہدایت ملی ہے اور نہ ان کے پاس روشن کتاب، اکڑائے ہوئے ہیں اپنی گردنوں کو تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اللہ کی راہ سے۔ ایسوں کے لیے ہے دنیا میں رسوائی، اور چکھائیں گے انہیں ہم روز قیامت عذاب جلدی آگ کا۔ کہا جائے گا یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو آگے بھیجے تھے تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر بے شک۔ اور انسانوں میں کوئی ایسا ہے جو بندگی کرتا ہے اللہ کے کنارے پر رہ کر، پھر آگے پہنچے اسے کوئی فائدہ تو مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کہ اگر پہنچتا ہے اسے کوئی فتنہ تو الٹا پھر جاتا ہے اپنے منہ کے بل، گنوا دی اس نے دنیا بھی اور آخرت بھی۔ استغفر اللہ۔ یہی ہے کھلا گھاٹا۔ استغفر اللہ۔ پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اسے، اور انہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اسے۔ یہی ہے گمراہی پرلے درجے کی۔ پکارتا ہے وہ اس سے جس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے فائدے سے۔ کیا ہی برا ہے آقا، اور کیا ہی برا ہے رفیق۔ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیا انہوں نے نیک عمل، ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، بے شک کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جو شخص رکھتا ہے یہ گمان کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اس کی اللہ دنیا میں اور آخرت میں، اسے چاہیے کہ چڑھ جائے ایک رسی کے ذریعے آسمان تک اور کاٹ ڈالے، اور پھر دیکھے کیا دور کرتی ہے اس کی یہ تدبیر اس چیز کو جو اسے ناگوار ہے۔ اور اسی طرح نازل کیا ہم نے قرآن کو کھلی کھلی نشانیوں کی صورت میں، اور یقیناً اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے بے شک بے شک بے شک۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور سائبین اور نصارہ اور مہجوس، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ فیصلہ فرمائے گا ان سب کے درمیان روز قیامت۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ کیا نہیں دیکھتے تم کہ بے شک یہ اللہ ہی ہے کہ سجدہ کرتے ہیں جسے وہ سب جو ہے زمین اور آسمان میں، اور وہ بھی جو ہے زمین میں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ لازم ہو چکا ہے ان کے لیے عذاب، اور جسے ذلیل کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان جھگڑا ہے اپنے رب کے معاملے میں، سو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تراشے جا چکے ہیں ان کے لیے لباس آگ کے، اور ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی، گل جائیں گی اسے تمام وہ چیزیں جو ہیں ان کے پیٹوں میں، اور کھالیں بھی، اور ان کے لیے
गुर्ज होंगे लोहे के, जब भी इरादा करेंगे वो निकलने का उसमें से, घबरा कर धकेल दिए जाएंगे फिर उसी में। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और कहा जाएगा चखो मज़ा जलने की सज़ा। यकीनन अल्लाह दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए और किया उन्होंने नेक अमल, ऐसी जन्नतों में कि बह रही हैं उनके नीचे नहरें, पहनाए जाएंगे उनके वहाँ कंगन सोने के और मोती के, और उनका लिबास वहाँ रेशम होगा। और हिदायत बख्शी गई उनको पाकीज़ा बात कबूल करने की, और हिदायत बख्शी गई उन्हें उस रास्ते की जो लायक हम्द अल्लाह का है। बेशक वो लोग जो काफिर हैं और रोकते हैं अल्लाह की राह से और मस्जिद हराम से जिसे बनाया है हमने सब इंसानों के लिए, बराबर है मकामी लोग उसमें और बाहर से आने वाले भी। और जो शख्स भी इरादा करेगा उसमें रास्ते से हट कर किसी किस्म के जुल्म का, चखाएंगे हम उसे ज़रूर दर्दनाक अज़ाब का। अस्तगफिरुल्लाह। और याद करो जब मुकर्रर की थी हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जगह उस घर की, उस हिदायत के साथ कि ना शरीक बनाना मेरे साथ किसी चीज़ को, और पाक रखना मेरे घर को तवाफ़ करने वालों के लिए, क़याम करने वालों के लिए और रुकू व सुजूद करने वालों के लिए। और ऐलान कर दो इंसानों में हज का, आएंगे वो तुम्हारे पास पैदल चल कर और दबले दबले ऊँटों पर जो चले आ रहे होंगे तुम तमाम दूर दराज रास्तों से, ताकि देखें वो इन फ़वाइद को जो उनके लिए हैं हज में, और लें अल्लाह का नाम चंद मुकर्ररा दिनों में उन जानवरों पर जो बख्शे हैं अल्लाह ने उन्हें, अज़े किस्म मवेशी, फिर खाओ तुम खुद भी और उसमें से, और खिलाओ भूख के मारे मोहताजों को भी, फिर चाहे कि दूर करे अपनी मैल कुचल और पूरी करे अपनी नजरें और तवाफ़ करे उस कदीम घर का। ये था तामीर काबा का मकसद। और जो एहतराम करे अल्लाह की कायम करदा हुर्मतों का तो ये बेहतर होगा उसके हक़ में उसके रब के नज़दीक। और हलाल किए गई हैं तुम्हारे लिए मवेशी सिवाय इसके जो बताई जा चुकी हैं तुम्हें, सो परहेज़ करो बुतों की नापाकी से और परहेज़ करो झूठी बात से, यकसू होकर हो रहो अल्लाह के और न ठहराओ शरीक किसी को उसके साथ। और जो शिरक करता है अल्लाह के साथ तो ऐसा होगा, तो वो ऐसा है जैसे गिर गया हो आसमान से और उचक ले जाएं उसे परिंदे या जात फेंकी उसे हवा किसी दूर दराज मकाम पर। यह है असल मामला। और जो ताज़ीम करता है अल्लाह की निशानियों की सो यकीनन ये ताज़ीम करना दिल का तकवा है। तुम्हारे लिए उन जानवरों में फ़ायदे हैं एक वक्त मुकर्रर तक, फिर उनके हलाल होने की जगह है इस कदीम घर के पास। और हर उम्मत के लिए मुकर्रर किया हमने कुर्बानी का एक कायदा, ताकि ले वो नाम अल्लाह का उन जानवरों पर जो दिए हैं उसने उनको, अज़े किस्म मवेशी इसलिए कि तुम्हारा माबूद इलाही वाहिद है, बेशक सिवा उसी के मती ये फरमान बनो। और ए बनी बिशारा दे दो आजिज़ी इख्तियार करने वालों को जिनका ये हाल है कि जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का तो कांप उठते हैं उनके दिल, और जो सब्र करते हैं उस मुसीबत पर जो आती है उन पर, और कायम करते हैं नमाज और उसमें से जो दिया है हमने उन्हें खर्च करते हैं, और कुर्बानी के ऊँट शामिल किया है हमने उनको तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में, तुम्हारे लिए इनमें भलाई है। सो लो नाम अल्लाह का उन पर सफ़ में खड़ा करके, फिर जब गिर जाएं वो पहलू के बल तो खाओ खुद भी उसमें से और खिलाओ सब्र से बैठे हुओं को, और सवाल करने वालों को भी इस तरह मुसख्खर किया हमने उन्हें तुम्हारे लिए ताकि तुम शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं पहुँचते हैं अल्लाह को उनके गोश्त और ना ही उनके खून, लेकिन पहुँचता है उसे तकवा तुम्हारा, इस तरह मुसख्खर किया है उन्हें तुम्हारे लिए ताकि तुम किब्रियाई बयान करो अल्लाह की उस पर जो हिदायत बख्शी उसने तुम्हें, और बिशारा दे दो नेकीकार लोगों को यकीनन अल्लाह मुदाफ़त करेगा उन लोगों की तरफ से जो ईमान लाए। यकीनन अल्लाह नहीं पसंद करता किसी खयानत करने वाले नाशुक्रे को। इजाज़त दे दी गई है जंग की उन लोगों को जिनसे जंग की जा रही है क्योंकि वो मजलूम हैं, और बेशक अल्लाह उनकी मदद पर हर तरह कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह फ़लस्तीन की मदद फरमा, या अल्लाह फ़लस्तीन की मदद फरमा। ये वो लोग हैं जो निकाल दिए गए अपने घरों से ना हक सिर्फ उस कसूर पर कि वो कहते थे हमारा रब अल्लाह है, और अगर ना दफ़ा करता रहता अल्लाह इंसानों में से बाज़ को बाज़ के ज़रिए से तो ज़रूर मस्तमार कर दी जाती। खानकाहें, गिरजे, इबादत खाने और मस्जिदें जिनमें लिया जाता है अल्लाह का नाम कसरत से, और ज़रूर मदद करता है अल्लाह उनकी जो उसकी मदद करते हैं। यकीनन है अल्लाह बहुत ताकतवर और ज़बरदस्त। ये वो लोग हैं कि अगर इक़्तिदार बख्शे हम उन्हें ज़मीन में तो कायम करते हैं नमाज, तो कायम
تو कायम करते हैं नमाज और देते हैं ज़कात और हुक्म करते हैं नेकी का और मना करते हैं बुराई से और अल्लाह ही के हाथ में है अंजाम सब कामों का बेशक बेशक। और अगर ये जुटलाते हैं तुमको तो कुछ अजब नहीं कि इसलिए कि जुटलाई जा चुकी है इनसे पहले कौम नूह और आद समूद और कौम इब्राहिम और कौम लूत और मदीन वाले और जुटलाए गए थे मूसा अलैहिस्सलाम भी तो मोहलत दी मैंने काफरों को फिर पकड़ लिया उन्हें तो देख लो कैसा था मेरा अजाब। अस्तगफिरुल्लाह। अर्ज करती हैं बस्तियां हैं कि हलाक किया हमने उनको उस हालत में कि वो जुल्म कर रही थी सो वो अब उल्टी पड़ी हैं अपनी छतों के बल और कितने ही कुएं नकारा हैं और मजबूत महल वीरान पड़े हैं। बेशक तो क्या नहीं है चले फिरे ये ज़मीन तो क्या नहीं चले फिरे ये ज़मीन में कि हासिल हो जाते हैं उनको ऐसे दिल के समझते ही उनसे या ऐसे कान के सुनते ही उनसे हक बात। वाक़या ये है कि नहीं अंधी होती हैं आँखें बल्कि अंधे हो जाते हैं वो दिल जो सीनों में हैं और जल्दी मचा रहे हैं ये लोग तुमसे अजाब के लिए हालांकि हरगिज़ नहीं खिलाफ करता अल्लाह अपना वादा के। और दरअसल एक दिन तेरे रब के नज़दीक 1000 साल के बराबर है तुम्हारे हिसाब की रूह से। और कितनी ही बस्तियां हैं कि मोहलत दी हमने उन्हें के पहले जबकि वो जालिम थी फिर पकड़ लिया हमने उन्हें और मेरे ही पास सबको लौट कर आना है। बेशक बेशक अल्लाह बेशक बेशक कह दो ए नबी ए लोगो दर हकीकत मैं तो बस तुम्हें ख़बरदार करने वाला हूँ वाज़िया तौर पर जो लोग ईमान लाए और किए उन्होंने अच्छे अमाल और उनके लिए मग़फ़िरत और रोज़ी इज़्ज़त की और वो लोग जो कोशिश करेंगे हमारी आयात को नीचा दिखाने की अस्तग़फ़िरुल्लाह ऐसे ही लोग अहले दोज़ख हैं। और नहीं भेजा हमने तुमसे पहले कोई रसूल और ना कोई नबी मगर ऐसा होता रहा कि जब उसने तिलावत की तो वो खलल अंदाज हुआ शैतान उसकी तिलावत में फिर मिटा देता रहा। अल्लाह उस खलल अंदाजी को जो शैतान करता रहा फिर पुख्ता कर देता रहा। अल्लाह अपनी आयत को और अल्लाह अलीम व हकीम है। बेशक बेशक ये इसलिए करता है कि बना दे अल्लाह शैतान के डाले हुए खलल को आजमाइश उन लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी है और सख्त है जिनके दिल और बेशक ये ज़ालिम मुखालफत में बहुत दूर निकल गए हैं। और इसलिए भी करता है कि जान लें वो लोग जिन्होंने दिया गया है इल्म के बेशक कुरान हक है तेरे रब की तरफ से फिर वो ईमान ले आए उस पर और झुक जाएं उसके आगे उनके दिल यकीनन अल्लाह हिदायत देता है। बेशक बेशक उन लोगों को जो ईमान लाए सीधे रास्ते की और हमेशा पड़े रहेंगे वो लोग जो काफिर हैं शक में उसके बारे में कि हत्ता कि आ जाएगी उन पर क़यामत की घड़ी अचानक आ जाएगा उन पर अज़ाब नामुबारक दिन का अस्तग़फिरुल्लाह। बादशाही होगी अल्लाह उस दिन अल्लाह की बादशाही होगी उस दिन अल्लाह की बादशाही होगी उस दिन अल्लाह की फ़ैसला करेगा उनके दरमियान। फिर जो लोग ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमल होंगे वो नेमत भरी जन्नतों में बेशक। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और झुटलाया होगा हमारी आयत को सो ऐसे ही लोग हैं कि उनके लिए अज़ाब रुसवाकुन। और वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह की राह में फिर कत्ल हुए या मर गए ज़रूर बहम पहुँचाएगा उनको अल्लाह बेहतरीन रोज़ी और बेशक अल्लाह ही है बेहतरीन रिस्क देने वाला। और ज़रूर दाखिल फरमाएगा उन्हें ऐसी जगह और ज़रूर दाखिल फरमाएगा उन्हें ऐसी जगह जिसे वो बहुत पसंद करेंगे और यकीनन अल्लाह है हर बात जानने वाला और नहायत बुर्दबार। बेशक ये है उनका अंजाम जिसने बदला लिया वैसा ही जैसा कि सताया गया था उसे फिर ज्यादती की गई उसके साथ फिर वो ज़रूर मदद करेगा उसकी। अल्लाह बेशक अल्लाह है बहुत ज़्यादा माफ़ फरमाने वाला और दरगुजर करने वाला। ये उसलिए कि दर हकीकत अल्लाह ही दाखिल करता है रात को दिन में और दाखिल करता है दिन को रात में बेशक। और यकीन अल्लाह है हर बात सुनने वाला और हर चीज़ देखने वाला। ये इसलिए कि दर हकीकत अल्लाह ही हक है बेशक बेशक। और ये कि दर हकीकत जिनको ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा वो बातिल हैं और ये कि अल्लाह ही है बालादस्त बहुत बड़ा। क्या नहीं देखा तूने ये कि अल्लाह ही बरसाता है आसमान से पानी फिर हो जाती है ज़मीन सरसब्ज़ यकीनन अल्लाह लतीफ़ व ख़बीर है बेशक। उसी का है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है ज़मीन में बेशक। और बेशक अल्लाह ही है बेनियाज और काबिल तारीफ़ बेशक। क्या नहीं देखा तूने ये कि अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए जो कुछ ज़मीन में और मुसख्खर कर दिया कश्तियों को जो चलती हैं समंदर में उसके हुक्म से और रोके हुए हैं वही आसमान को उससे कि गिर पड़े के ज़मीन पर मगर उसके हुक्म से बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा शफीक और मेहरबान है बेशक। और वही है जिसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी फिर मौत देता है तुम्हें फिर जिंदा कर देगा तुम्हें। बेशक इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है बेशक इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। हर उम्मत के लिए हमने मुकर्रर किया इबादत का तरीका कि वो उसी तरीके से इबादत
मदद करती है। बस ना झगड़ा करे कोई तुमसे उस मामले में और दावा दो तुम अपने रब की तरफ, बेशक तुम सीधे रास्ते पर हो। और अगर वो झगड़ा करें तुमसे कह दो कि अल्लाह ही बेहतर जानता है उसको जो तुम कर रहे हो, अल्लाह फैसला करेगा तुम्हारे दरमियान रोज़े क़यामत और उन बातों का जिनमें तुम इख्तलाफात करते हो, इख्तलाफ करते रहे। क्या नहीं जानते तुम के बिलाशुबा अल्लाह जानता है उसको जो है ज़मीन में और आसमान में। बेशक ये सब कुछ दर्ज है एक किताब में, बेशक ये काम अल्लाह के लिए आसान है। और पूछते हैं ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ को कि नहीं नाजिल फरमाई अल्लाह ने उनके बारे में कोई सनद, और उन चीज़ों को के नहीं है खुद उन्हें भी इनके बारे में कुछ इल्म, और ना होगा ऐसे ज़ालिमों का कोई मददगार। और जब तिलावत की जाती है उनके सामने हमारी वाज़िह आयात तो साफ नज़र आ जाते हैं और तुमको उन लोगों के चेहरों पर जो काफिर है नापसंदगी के आसार यूँ लगता है कि टूट पड़ेंगे उन लोगों पर जो तिलावत करते हैं उनके सामने हमारी आयात। कह दो कि मैं तुमको बताऊं ज़्यादा बुरी चीज़ इससे भी, वो आग है जिसका वादा कर रखा है अल्लाह ने उन लोगों से जो काफिर हैं, और बहुत ही बुरा है वो ठिकाना। ए लोगो, बयान की जाती है एक मिसाल तो गौर से सुनो उसे। यकीनन वो जिनको पुकारते हो तुम अल्लाह के सिवा हरगिज़ नहीं पैदा कर सकते वो एक मक्खी भी, अगरचे जमा हो जाए वो सब इसी काम के लिए। और अगर छीन ले जाए उनसे मक्खी कोई चीज़ तो नहीं छुड़ा सकते उससे, कमज़ोर हैं मदद मांगने वाले भी, और वो भी जिनसे मदद मांगी जाती है नहीं पहचान सके ये अल्लाह को जैसा कि हक़ है उसको पहचानने का। यकीनन अल्लाह ही ताकतवर और गालिब है। अल्लाह मुंतखब फरमा लेता है फरिश्तों में से अपने पैगाम रसा और इंसानों में से भी, बेशक अल्लाह है हर चीज़ सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला। जानता है उसको भी जो उनके सामने है और वो भी जो उनके पीछे है, और अल्लाह ही की तरफ लुटाए जाते हैं सब मामलात। ऐ ईमान वालो, रुकू करो, सजदा करो और इबादत करो अपने रब की, और करो नेक काम ताकि तुम फलाह पाओ, और जहाद करो अल्लाह की राह में जैसा कि हक़ है जहाद करने का। उसने चुन लिया है तुमको और नहीं रखी उसने तुम पर दीन में कोई तंगी। अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत पर कायम हो जो अल्लाह ही ने तुम्हारा नाम रखा है मुस्लिम, पहले भी और इस कुरान में भी, ताकि बने रसूल गवाह तुम पर और बनो तुम गवाह लोगों पर। सो कायम करो नमाज और ज़कात और वाबस्ता हो जो अल्लाह के साथ, वही तुम्हारा मौला है। सो क्या ही अच्छा है वो मौला और क्या ही अच्छा है वो मददगार। बेशक 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 आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा आनिस वाशाति फ़ी क़ब्री अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमत। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु वअल्लिमनी मिन्हु मा जाहिलतु वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहारि वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन आमीन। ऐ अल्लाह दूर पर फरमा मेरी परेशानी मेरी कब्र में है, अल्लाह रहम फरमा मुझ पर कुरान अज़ीम की बरकत से, और बना तो कुरान को मेरे लिए पेशवा रोशनी हिदायत और रहमत। अल्लाह याद दिला दे तू मुझे कुरान में से जो मैं भूल कर जो मैं नहीं जानती, और नासी फरमा तू मुझे उसकी तिलावत रात के वक्त और दिन के वक्त बना तो उसको मेरे लिए हुज्जत। ए रब्बुल आलमीन कबूल फरमा, ए रब्बुल आलमीन कबूल फरमा, ए रब्बुल आलमीन इस नेक रात के सदके ए अल्लाह है मेरे मालिक है मेरे परवरदिगार, दूर फरमा परेशानी हमारी कब्रों में, हमारे वालिदैन की कब्रों में, या अल्लाह मेरी वालिदा मोहतरमा की कब्र में, या अल्लाह रहम फरमा उन पर कुरान अज़ीम की बरकत से। या अल्लाह सारी ज़िंदगी उन्होंने नेक तालीम दी लोगों को, या अल्लाह कुरान पढ़ा, या अल्लाह उस कुरान पढ़ने के वास्ते या अल्लाह उनको बख्श दे, या अल्लाह उनकी कब्र में बरकत अता फरमा रहमत अता फरमा। या अल्लाह मेरी नानी अम्मा की कब्र में इस कुरान अज़ीम की बरकत से और उनको बना दे उनके लिए हिदायत और रहमत। या इलाही बख्श दे उनको इस कुरान अज़ीम की बरकत से, या इलाही बख्श दे उनको इस कुरान अज़ीम की बरकत से। या अल्लाह बे औलाद को औलाद अता फरमा, कर्जदार को कर्ज से इखलास अता फरमा। या अल्लाह इस नेक रात के वास्ते बे औलाद को औलाद अता फरमा। या अल्लाह इस नेक रात के वास्ते, या अल्लाह हर मोमिन मुसलमान को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मेरी औलाद को इस नेक रात के वास्ते, या अल्लाह मेरी औलाद की इस नेक रात के वास्ते हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मेरी औलाद को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाता। या अल्लाह हर मोमिन मुसलमान को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमेशा देने वाला हाथ रखिए हमारा। या अल्लाह मुझे उतना दे जितनी मुझे ज़रूरत है, या अल्लाह मुझे इससे ज़्यादा ना देना। या इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक ज़माना है, दुनिया में लोग कुफ्र करते हैं, कुफ्र करके पछताते नहीं।
یا الہی تو نے مجھے نعمت دی، تو نے مجھے رحمت دی، شکر ہے تیرا اللہ، شکر ہے تیرا اللہ۔ یا اللہ ان کو سیدھے راستے پر رکھنا، یا اللہ ان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ہمیں اس دنیا میں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر شیطان کے شر سے، ہر برے کام سے محفوظ رکھنا، یا اللہ میرے اندر جو بھی بیماریاں ہیں ان کو ختم کرنا، یا اللہ حسد کی، بغض کی، کینہ کی، یا اللہ مال و دولت اکٹھا کرنے کی، یا اللہ، یا اللہ میرے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں یا اللہ دور فرما، یا اللہ مجھے صحت یاب کر صبر کرنے کی ہدایت دے، یا اللہ ہر مومن مسلمان کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی میرے شوہر کو بخش دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ، یا الہی آبرو رکھنا، یا اللہ، یا الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، یا اللہ مرتے وقت تمام مسلمانوں کو کلمہ شہادت نصیب فرما، ہمیں کلمہ شہادت نصیب فرما، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، آمین ثم آمین۔